welcome back you all. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 15th of English, and the name of the chapter is Toasted English, right? So let us begin with the chapter and see what they're telling us about this. So, in American restaurants, they call for toasted English, referring to English muffins, which, though being made in America, now retain English as a sort of concession to their origin, right? अब अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में जो टोस्टेड इंग्लिश कहा जाता है वो एक्चुअली इंग्लिश मफिन्स के लिए यूज किया जाता है, राइट? क्योंकि वो अमेरिका में बनाए जाते हैं, नाउ रिटेन इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश उसके पीछे लगाते हैं एज अ सॉर्ट ऑफ कंसेशन टू देयर ओरिजिन, राइट? यानी कि उन्हें लगता है कि अगर वो इन मफिन्स से पहले इंग्लिश लगा देंगे तो शायद इससे उनकी शान में थोड़े ज़्यादा प्राउड फीलिंग आ जाएगी. The same may be said to the American language too. इस सेम चीज को अमेरिकन लैंग्वेज में भी तो कहा जा सकता है. They too went through a phase of throwing out the British but retaining their language and letting the flourish in American soil. The resultant language is somewhat different from its British counterpart, after it may be said to have gone through a process of toasting, right? कि वो लोग भी इसी फेज को यूज करने लगे, throwing out the British, यानी कि वो लोग ब्रिटिश को छोड़ करके they have also tried to retain on the English language only, right? There is a difference between the British English and the normal English, right? So they were like but retaining their language and letting it flourish on American soil, कि वो लोग ब्रिटिश को भूलकर अमेरिकन सॉइल पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे थे. The resultant language is somewhat different from its British counterpart, और इसीलिए जो अब लैंग्वेज वहाँ पे यूज की जाती है वो ब्रिटिश लैंग्वेज से थोड़ी अलग होती है, राइट? It may be said to have gone through a process of toasting. कि ऐसा कहा जा सकता है कि उस लैंग्वेज को उन्होंने टोस्टिंग के प्रोसेस से होकर गुजारा है, राइट? One noticeable result of this toasting is that much of the formalism surrounding the use of English has been abandoned, right? कि एक noticeable result जो हमने इसकी toasting process में देखा is that much of formalism surrounding the use of English has been abandoned. यानी कि जो formal English थी, राइट, जो हम यूजुअली फॉर्मल पर्पसेस के लिए यूज करते थे, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं गायब हो गई है, राइट? इन अमेरिका दे हैव फ्रीड द लैंग्वेज फ्रॉम द स्टिफलिंग टिरनी ऑफ द पैसिव वॉइस, राइट? कि अमेरिका में उन्होंने इस लैंग्वेज को बिल्कुल फ्री कर दिया है from the stifling tyranny of the passive voice, कि वहाँ पर जितनी भी formal passive voice यूज की जाती थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने फ्री कर दिया है, right? Where we would say ceremoniously trespassing prohibited, यानी कि जहाँ पर हम यूजुअली बोलते थे ट्रेसपासिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पर एंट्री करना मना है. ट्रेसपासिंग मीन्स किसी के एरिया में आप ज़बरदस्ती घुस जाओ बिना उसकी परमिशन के, तो वो ट्रेसपासिंग कहलाता है, राइट? तो वो कहा जाता है ट्रेसपासिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पर बिना परमिशन के घुसना मना है. There are signboards, as I noticed in the parks of Berkeley, merely say न्यूली प्लांटेड, कि जो साइन बोर्ड्स होते थे जहाँ पर जो पार्क्स थे बर्कली के, वहाँ पर लिखा होता था न्यूली प्लांटेड.
Don't walk or absolutely no parking leaves no room for speculation, and no motorist need to spend too much time peering out and studying the notice, right? कि don't walk या फिर absolutely no parking के वहाँ पर बोर्ड रखे रहते थे, राइट? जहाँ कि किसी के पास टाइम नहीं होता था कि वो अपनी कार में से उतरे और उन नोटिस बोर्ड्स को देखे, करेक्ट? In a similar situation, our authorities are likely to plant a 20-line inscription on the landscape to say, under Municipal Act so and so, this area has been reserved, etc., etc. Right? कि यही सेम सिचुएशन हमारी अथॉरिटीज के साथ थी, जो कि 20 प्लांट जो है उनको they used to plant the trees in a 20-line inscription of the landscape, right? ताकि वो सिर्फ ये कह सके कि ये जो एरिया है ये एक्चुअली रिजर्व्ड है म्यूनिसिपल एक्ट के लिए, right? And any vehicle stationed thereon will be deemed to have contravened subsection and so of the Motor Vehicles Act, etc. राइट? कि उन्हें सिर्फ ये बताना होता था कि यहाँ पर कोई भी बाइक या गाड़ी खड़ी होगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, और फिर जो भी प्रोसेस होते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. आफ्टर दैट I saw on many American office doors just do not enter, right? उसके बाद मैंने बहुत सारे American office doors देखे जहाँ पर सिर्फ लिखा था do not enter. The traffic signs at pedestrian crossings never mince words, they just say go or wait. और जो ट्रैफिक साइंस थे पेडेस्ट्रियन क्रॉसेस पर, उन पर सिर्फ वर्ड्स लिखे होते थे जो कि थे गो या फिर वेट. इन अ हॉलीवुड स्टूडियो आई वाज रादर स्टार्टल्ड टू रीड मार्क स्टीवंस कीप आउट, राइट? कि कहीं कहीं पर मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिलता था जहाँ पर लिखा था मार्क स्टीवंस कीप आउट, right? Mark Stevens is a busy television personality which does not like to be disturbed by visitors. यानी कि ये जो मार्क स्टीवंस है ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फेमस टीवी पर्सनालिटी है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके घर पर आए, राइट? तो इसीलिए सभी लोग अपने घर के आगे ये बोर्ड भी लगा देते थे, करेक्ट? Incidentally, it left me wondering why, if Mr. Stevens did not like interruptions, if announced his name at all on the door, right? Incidentally, it left me wondering why. कुछ ऐसा हुआ कि इन सभी चीज़ों ने मेरे माइंड में क्वेश्चन डेवलप कर दिया. क्यों? If Mr. Stevens did not like interruptions, he announced his name at all on the door, right? कि अगर मिस्टर स्टीवंस को अपने लाइफ में कोई रुकावट पसंद नहीं थी तो उन्होंने अपना नेम अनाउंस कर दिया at all the door, कि उन्होंने सभी घरों पे अपना नाम लिखवा दिया. But it is one of the minor mysteries that make travel through that country so engrossing. पर ये उस मिस्ट्री का, यानी कि जो वो पूरी मिस्ट्री चल रही थी उसका एक छोटा सा पार्ट था that make travel through that country so engrossing, यानी कि जिसने उस कंट्री के थ्रू जो ट्रैवल यानी कि जो ट्रैवलिंग हो रही थी उस कंट्री के थ्रू वो so engrossing, right? The toasting of English has been achieved through other means also. कि ये जो टोस्टिंग है इंग्लिश की ये कुछ और चीज़ों से भी उभर कर आई है. Americans have evolved certain basic keywords which may be used anywhere, anyhow, words which have universal multi-purpose use. कि जो अमेरिकन्स है उन्होंने इवॉल्व किया है एक
आधुनिक तरीके का कीवर्ड्स, राइट। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जिनका यूनिवर्सल यानी कि पूरे यूनिवर्स में उनके मीनिंग्स है और मल्टीपर्पस यूज है, यानी कि हम उन्हें बहुत सारे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे कीवर्ड्स बनाए गए हैं। I may make my point clear if I mention the example of the word check. कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर सकता हूँ कैसे? अगर मैं एक वर्ड मेंशन करूँ जो कि है चेक, which may safely be labeled the American national expression, जिसको हम अमेरिकन नेशनल एक्सप्रेशन के तरह लेबल कर सकते हैं। While the British usage confines it to its bare dictionary definitions, the American uses it anywhere, this expression being so devised that one may blindly utter it and still find it is appropriate for the occasion, right? कि जो ब्रिटिश यूजेज है वो इस बेयर डिक्शनरी वर्ड को अपनी डेफिनेशंस में डिस्क्राइब करते हैं कि अमेरिकन इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इस तरीके से डिवाइस किया गया है कि कोई भी जना इसे कहीं भी यूज कर सकता है एंड स्टिल फाइंड इट अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन, कि इसे किसी भी कंडीशन में यूज किया जाए, इसे उस ओकेजन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट लगाया जाता है, राइट कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं हम उसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। I'll check means I'll find out, investigate, examine, scrutinize. I'll check means I'll find out, investigate, examine, scrutinize, verify, or probe. Your check means your ticket, token, or whatever you may have to produce. यानी कि यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं I'll check, इसका मतलब होता है कि हम उस चीज के बारे में ढूंढेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट। योर चेक का मतलब होता है कि तुम्हारे टिकट, तुम्हारा टोकन या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि तुम्हें प्रोड्यूस करनी है, राइट। चेक रूम is where you leave your possession for a while. चेक रूम का मतलब होता है कि जहाँ पर आप अपने पोजेशंस यानी कि अपने बिलोंगिंग्स कुछ थोड़ी देर के लिए रख देते हो, तो आप उसको दोबारा चेक करते हो कि क्या आपकी कोई चीज वहां पर रह तो नहीं गई है, करेक्ट। चेक गर्ल इज वन who takes care of your coat, umbrella and anything else you may leave in custody. चेक गर्ल होती है जो आपकी चीजों का ध्यान रखती है, जैसे कि आपका कोट, आपका अम्ब्रेला या फिर कोई भी चीज जो आप उसकी कस्टडी में छोड़ गए हो, राइट। चेक इन एंड चेक आउट एट फर्स्ट आई हर्ड एज चेक आउट एंड फेल्ट रादर डिस्टर्ब्ड, refer to one's arrival in a hotel and departure therefrom, राइट कि जो चेक इन और चेक आउट वर्ड होता है जो कि सबसे पहली बार जब मैंने सुना था तो वो मुझे चेकआउट सुनाई दिया था, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगा, खैर जो भी है। पर चेक इन और चेकआउट का मतलब होता है जब हम किसी होटल में अराइव करते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं या फिर वहाँ से डिपार्चर लेते हैं, यानी कि वहाँ से हम लोग जाते हैं, करेक्ट। एंड देयर आर scores of other incidental uses for the word, और हर जगह scores होते हैं of other incidental uses for the word, और हर जगह पर हर word के लिए अलग अलग words use किए जाते हैं अलग situation के according, right? If you ever heard up for a noun or a verb, you may safely utter the word check and feel confident that it will fit in. कि अगर आप कभी किसी नाउन या फिर किसी वर्ब के लिए थोड़ा कंफ्यूज हुए हो कि यहाँ पर कौन सी चीज सूट करेगी,
तो आप किसी दूसरे पर्सन को बोल सकते हो, यू कैन अटर द वर्ड चेक टू द अदर पर्सन, एंड उसके बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ ये वर्ड अगर वो पर्सन सामने वाला उसको वेरिफिकेशन दे देता है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ आपने वहाँ पर सही वर्ड यूज़ किया था. करेक्ट. Fabulous is another word that is used in the country freely without much premeditation. यानी कि fabulous एक और दूसरा वर्ड है जो कि यूज होता है उस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा फ्रीली विदाउट मच प्रेडिटेशन, यानी कि बिना किसी प्रेडिमेंटेशन, यानी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी माइंड में कोई डाउट नहीं रहता है उस वर्ड को यूज करते हुए. बहुत ही ज़्यादा फ्रीली हम उसे यूज कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में. ऑफ कोर्स एवरीवन नोज व्हाट फेबुलस मीन्स, बट अमेरिकन यूजेज हैज एनलार्ज्ड इट्स सेंस. कि ऑब्वियसली हम सभी को पता है फैबुलस का मतलब क्या होता है, यानी कि इट इज़ लाइक किसी को जब आप तारीफ करते हो तब हम फैबुलस वर्ड यूज करते हैं. पर जो अमेरिकन यूजेज है उसने इसके मीनिंग को, इसके यूजेज को थोड़ा और इनलार्ज यानी कि थोड़ा और बड़ा बना दिया है. I heard a lady in Wisconsin declare, "Oh, those cats of mine are fabulous," meaning that they are eccentric, right? अब अगर so now the author is saying कि मैंने एक लेडी विंस्कन को डिक्लेयर करते हुए सुना कि ओह these cats are mine, these cats of mine are fabulous, right? एक लेडी ने ये बोला कि जो मेरी कैट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा fabulous है, meaning that they were eccentric, right? कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. करेक्ट. Oh, so he is fabulous may mean anything from the sincere compliment to an institution that so and so displays a mild form of charming leniency, right? तो अब दूसरा सेंटेंस है ओ सो एंड सो ही इज फैबुलस, और इन्हीं की तरह वो भी बहुत फेबुलस है. इसका मतलब हो सकता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है, राइट? उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है एक इंस्टीट्यूशन के लिए, दैट एंड सो डिस्प्लेज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ चार्मिंग लेनेसी, राइट? ओके और ओके इज अनदर वेल नोन एग्जाम्पल कि ये जो वर्ड है ओके और ओके दोनों ही सेम है, राइट? ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. इट इज द easiest sound that ever emanated from the human vocal cords. कि ये भी सबसे ज़्यादा easy emanated sound है जो कि लोग usually use करते हैं. Everyone knows how comprehensive its sense can be. सभी को पता है कि इस वर्ड का जो यूजेज है वो कितना ज़्यादा comprehensive हो सकता है. Okay is a self-sufficient word which needs no suffix. कि okay एक ऐसा self-sufficient word है जिसको कोई suffix की नीड नहीं होती है to indicate any special respect for the listener, right? कि इसमें हमें कोई भी ऐसा word नहीं लगाना होता है जहाँ पर हमें listener को एक special respect देनी हो, right? It can stand by itself without a sir. कि ये अपने आप स्टैंड ले सकता है बिना किसी रिस्पेक्ट के, यानी कि अगर हम मेंशन ना करें ओके सर देन ऑल्सो इट इज फाइन, राइट? टू कंक्लूड द सेंटेंस, यानी कि जब हमें सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकालना हो, करेक्ट? इन दिस रिस्पेक्ट in this respect it is like yeah, which seals of a sentence without further ado. Yes sir or yes darling is conceivable, but yes sir or yeah darling is unthinkable. यानी कि
यहीं पर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम य बोले, राइट, तो हम य के आगे वी नीड टू ऐड सर और वी नीड टू ऐड या डार्लिंग, राइट. या इज नॉट अ कंप्लीट वर्ड जो कि अपना एक पूरा लाइक अपने आप स्टैंड ले सके. इट नीड्स सम सफिक्स और द प्रीफिक्स विद इट, राइट. यह इज uttered in a short base of the tongue grunt which almost snaps any further continuation of a sentence, right. कि यह जो है वो एक्चुअली अटर किया जाता है in a short base of the tongue grunt which almost snaps any further continuation of a sentence. यानी कि यह जो है वो एक छोटा सा हमारे टंग का बेस है जिसके बाद हमें पूरा सेंटेंस दोबारा से रिपीट करना पड़ता है, राइट. Yes involves time as the sibilant could be prolonged, right. कि यह की जगह हम yes का यूज कर सकते हैं बट yes जो है वो थोड़ा सा prolonged हो जाएगा, करेक्ट. तो इसीलिए हम लोग yes का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, दैट इज yeah. The refinements of usage in countries where English has a bazaar status are worth a study. यानी कि जो refinements हैं country की usage के जहाँ पर English has a bazaar status and worth a study, जहाँ पर इंग्लिश जो है वो पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है. लोग यूजुअली यहाँ हमारी कंट्री में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करते हैं सो दैट दे कैन गेट अ गुड वोकैब, राइट, एंड दे कैन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, करेक्ट. ऑन अ लंदन बस you will never hear the conductor cry ticket ticket, right. कि एक लंदन बस पे आप कभी भी नहीं सुनोगे कि कंडक्टर बोले टिकट या टिकट जैसे कि हमारी कंट्री में होता है. द कंडक्टर इज ऑलवेज शाउटिंग, राइट. ही अप्रोचेस द पैसेंजर एंड सेज थैंक यू एंड ऑन रिसीविंग द फेयर सेज अगेन, राइट. कि जो कंडक्टर है वो पैसेंजर के पास जाता है और उसको और बोलता है थैंक यू, और जब वो फेयर रिसीव कर लेता है तो वो दोबारा उसे थैंक यू सर बोलता है, करेक्ट. I found or that one could calculate the number of passengers in a bus by halving the total number of thanks heard. यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स है वो उनका नंबर इस तरीके से काउंट करता होगा कि वो जितनी बार थैंक्स बोलता होगा उसके नंबर को जस्ट आधा कर देता होगा और उसे अपनी बस के पैसेंजर्स के नंबर पता चल जाते होंगे, करेक्ट. इन एनी वेस्टर्न कंट्री इफ अ रिसेप्शनिस्ट आस्क्स, कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री में अगर एक रिसेप्शनिस्ट पूछती है कैन आई हेल्प यू, इट रियली मीन्स हैव यू एनी बिजनेस हेयर, इफ सो स्टेटेड. कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री में कोई रिसेप्शनिस्ट अगर पूछती है कैन आई हेल्प यू तो उसका मतलब होता है कि आपका यहाँ पर क्या काम है और जो भी काम है उसको बताइए, राइट. और इट मे मीन एविडेंटली you have wandered off into a wrong place, go away. या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपको बताना चाहती हो कि आप एक गलत जगह पर आ गए हैं और अब आप यहाँ से जा सकते हैं, right? A man who wants to pass you always says excuse me while he may with all justice burst out, what do you mean by standing there? Gapping at the word while you block everybody's passage. Stand aside, man. Right? अब एक पर्सन जब आपको बोलता है excuse me, right? जब कोई आपके रास्ते में आ जाता है या someone is blocking your passage, तो आप उसको बहुत ही प्यार से excuse me बोलते हो और उसके साइड से निकल जाते हो, करेक्ट. इंस्टेड उसकी जगह होता है वो ये भी कर सकता है he might burst out on you and say कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो, right? Why are you gapping the word with me?
तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो और यहाँ से साइड हट जाओ. Right? He can't say like this. So in a simple way, he says, excuse me very politely. When you send your card in, the busy man's secretary appears and whispers in your ear, would you like to wait? कि जब आप एक कार्ड भेजते हो अंदर तो एक बिजी मैन होता है, उसकी सेक्रेटरी आती है सामने और वो आपके कान में धीरे से बोलती है कि क्या आप वेट कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू वेट, राइट. Though the tone is one of consultation, you have really no choice in the matter. हालांकि उसका जो मैटर होता है वो कंसल्टेशन का होता है, यानी कि वो आपसे सिर्फ कंसल्ट कर रही है, बट क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो आपको हाँ ही भरना पड़ता है. The thing to do is not to answer the question but say thanks and look for a comfortable seat in the waiting room. Although you may feel like saying no, I wouldn't like to wait, I have other things to do, right? कि आप उसको सिर्फ थैंक्स ही आंसर कर सकते हो और पूरे ऑफिस में एक अच्छी सी सीट ढूंढ सकते हो जहाँ पर आप बैठ के थोड़ा वेट कर सको, राइट. बट अगर आपको वेट नहीं करना है तब भी आप उससे नो नहीं बोल सकते हैं. आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, आई एम नॉट फ्री टू सिट हियर, राइट. द टाइम हैज कम फॉर अस to consider seriously the question of a Bharat brand of English. अब टाइम आ चुका है कि हम सीरियसली इस क्वेश्चन को कंसिडर करें जो कि है भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश हमारे कंट्री में बोली जाती है उसे हम कैसे अपने भारत का ब्रांड दें, राइट. As I said in my essay on English in India, so far English has had a comparatively confined existence in our country, chiefly in the halls of learning, justice और administration. कि जैसा कि मैंने आपको अपने ऐसे इंग्लिश इन इंडिया में बताया है कि इंग्लिश जहाँ तक हमारी कंट्री की बात है तो वो हमारी कंट्री में हर जगह एग्जिस्ट करती है, चाहे वो हॉल्स ऑफ लर्निंग हो, जस्टिस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, राइट. नाउ द टाइम इज राइप फॉर इट टू कम टू द डस्टी स्ट्रीट, मार्केट प्लेस and under the banyan tree. English must adopt the complexion of our life and assimilate its idiom, right? कि अब जो टाइम है, it is the time कि हम now the time is ripe for it to come to the dusty street, marketplace and under the banyan tree. और अब टाइम आ चुका है कि हम इंग्लिश को यूज करें हर जगह पर, इवन दो इट इज अ डस्टी स्ट्रीट और द मार्केट प्लेस और अंडर द banyan tree. इंग्लिश मस्ट अडॉप्ट द कम्प्लेक्शन ऑफ आवर लाइफ, कि इंग्लिश को एक्चुअली अपना जो कम्प्लेक्शन है वो अडॉप्ट करना चाहिए हमारी लाइफ में, एंड assimilate its idiom, और इसकी जो कहावतें हैं उनको भी अब लैंग्वेज उसमें लागू करना चाहिए, राइट. आई एम नॉट सजेस्टिंग हियर mongrelization of the language. I am not recommending that we should go back to the days when we heard, particularly in the railways, where you going, man? Bharat English will respect the rule of law and maintain the dignity of grammar, but still have a Swadeshi stamp about it unmistakably, like the Madras handloom check shirt and or the Tirupati doll. How it can be achieved is a question for practical men to tackle, right? Now what they are saying is कि the author is saying कि मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि लैंग्वेज का मॉन्ग्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि हमें अपनी जो राष्ट्रीय भाषा है उसको भूलकर इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए.
ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उन दिनों में वापस जाना चाहिए जहाँ पर हम रेलवेज में सुना करते थे वर यू गोइंग मैन, राइट। कि जो भारत इंग्लिश है वो हमारे लॉ को, हमारे डिग्निटी को मेंटेन करके रखेगी, राइट। उसमें जो ग्रामर होगी उसको भी सही तरीके से यूज़ किया जाएगा, और जो हमारा इंग्लिश पर वो जो स्वदेशी स्टैम्प लगेगा, जैसे कि जो मद्रास की हैंडलूम चेक शर्ट होती है, राइट, तिरुपति डॉल, ये सब ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, राइट। How it can be achieved is a question for practical men to tackle. कि अब ये अचीव कैसे की जाए, राइट, कि एक मैन कैसे उसे प्रैक्टिकली अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकता है, ये क्वेश्चन है जो डेवलप होता है, राइट। So this was a beautiful chapter which was written by R.K. Narayan, right? So I hope you all found it very interesting and you all got the points clearly. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.